This is the next topic of the last lesson about the important words that has been discussed in the chapter. Previously we have talked about the author. पिछले टॉपिक में हमने ऑथर के बारे में बात की थी. अब हम करेंगे इसके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बात. द फर्स्ट वर्ड इज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ. इन ग्रेट ड्रेड ऑफ means fearful anticipation of something. means अगर हिंदी में कहें तो किसी बात की भयावह अनुभूति. किसी बात के होने की भयावह अनुभूति. इसके बाद दूसरा है थम्ड एट द एज. थम्ड एट द एज means born or spoiled edges. Born or spoiled edges. Edges caused by frequent handling. Caused by frequent handling means किनारों का खराब होना. मतलब खुरदरे किनारे बार बार इस्तेमाल होने की वजह से. थर्ड है ए ग्रेट वसल. A great vessel means noisy, energetic activity. Noisy, energetic activity means शोर शराबा. Then is the next is in unison. In unison means along, साथ साथ. Then reproach ourselves with. Reproach ourselves with means to accuse someone. Or a group. किसी पर इल्जाम लगाना. That's all. Like and subscribe. Next is for the next video. Next topic would be about the first paragraph of the chapter or the important questions of the chapter. Thank you. Hello friends and students of +2 class. Our first chapter is the last lesson. As we have started the chapter, the understanding of the chapter, and in the series of that
I am going to start this chapter. I started for school very late that morning. मैंने स्कूल जाना शुरू किया, स्कूल के लिए घर से निकला बहुत देर से उस सुबह, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मुझे बहुत ज़्यादा डर था डांट का, स्पेशली बिकॉज M. Hamill had said that he would question us on participles, क्योंकि M. Hamill ने कहा था कि वो हमारे से प्रश्न पूछेंगे participles के बारे में, and I didn't know the first word about them, और मुझे उसके बारे में पहला शब्द भी नहीं पता था। मैं स्कूल के लिए देर से चला उस सुबह और डांट खाने के भयानक भय से प्रभावित था, खास तौर पे क्योंकि M. Hamill ने कहा था कि वह पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न करेंगे और मुझे उसका पहला अक्षर भी पता नहीं था। For a moment I thought of running away and spending the day out of the doors. एक क्षण के लिए मैंने भागने की सोची और दरवाज़ों के बाहर दिन बिताने की सोची। It was so warm, so bright. बहुत गर्म था और बहुत चमकीला दिन था। एक क्षण के लिए मैंने भागने और सारा दिन बाहर गुजारने के बारे में सोचा। ये काफ़ी गर्म और उजाले भरा दिन था। The birds were chirping at the edge of wood. जो चिड़ियाँ थी वो चहचहा रही थी जंगल के किनारे पर, and in the open field back of the sawmill the Persian soldiers were drilling. और खुले खेत के पिछली तरफ सॉ मिल के पास पर्शियन सोल्जर्स जो थे, पर्शियन सिपाही जो थे, वो अभ्यास कर रहे थे। जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे। चक्की के पिछले खुले स्थान पर पर्शियन सैनिक अभ्यास कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule of participles. और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा लुभावना था उस participles के रूल से। And I had the strength to resist and hurried off to school. लेकिन मेरे पास ताकत थी कि मैं अपने आप को रोक पाता और तेज़ी से स्कूल की तरफ निकल जाता। ये सब पार्टिसिपल्स के नियमों से ज़्यादा लुभावना था, और लेकिन मेरे पास अपने को रोकने का सामर्थ्य था और जल्दी ही मैं स्कूल की तरफ चल पड़ा। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब। Hello students, now this is the next paragraph of the first chapter, the last lesson of Flamingo +2 class. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. मैं भी सोचता हूँ कि मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना और उसने भी कभी हर चीज़ को इतने धैर्य से साथ नहीं समझाया। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and put it all into our head at one stroke. ऐसा लग रहा था जैसे बेचारा आदमी जाने से पहले अपने दिमाग में जो कुछ भी था वो सब हमें दे देना चाहता था। वह चाहता था कि इसे एक ही झटके में वो हमारे दिमाग में डाल दे। After the grammar, we had a lesson in writing that day. M. Hamill had new copies for us, written in a beautiful round hand, Franz Elsses. व्याकरण के बाद हमें लिखाई का सबक करवाया गया। उस दिन M. Hamill के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थी जो सुंदर लिखावट में लिखी गई थी।
Else's friends, Else's friends. Thank you. This is for today, and next paragraphs in next videos. Thank you. In continuity of the chapter, the last lesson of plus 2 class, while I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he has used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." जब मैं सोच रहा था इन सब के बारे में, तब एम हेमल कुर्सी पर बैठे उसी गंभीर और सद्भावपूर्ण सुर में जिसका मैं अभ्यस्त था बोले, "मेरे बच्चों, ये आखिरी सबक है जो मैं तुम्हें दूंगा." नेक्स्ट इज द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। एक आदेश हुआ है बर्लिन से कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाए एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया टीचर कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा फ्रेंच का आखिरी लेसन है, सबक है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ आप सब बहुत ध्यानपूर्वक सुने। बर्लिन से आदेश हुआ है कि सिर्फ जर्मन पढ़ाने के लिए एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में कल नए अध्यापक आएंगे। ये तुम्हारा फ्रेंच का आखिरी सबक है। मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा ध्यान दें। नेक्स्ट इज व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी। किसी बिजली के कड़कने की तरह ये आवाज़, ये शब्द थे मेरे लिए। ओह द रेचेस, दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट टाउन हॉल। ओह बुरे लोग, ये लिखा था उन्होंने टाउन हॉल में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन in the next video. Thank you, subscribe.